अंडरस्टैंड यूपीएससी का बहुत ही सिंपल सा एक मोटो रहा है, इंडियन सोसाइटी के आंसर्स क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं बच्चों से। तो टू डिलीवर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वी हैव एडेड कंप्लीट सीसैट प्रोग्राम इन द फाउंडेशन प्रोग्राम। यस, एक टीचर जो कॉन्सेप्ट्स को इस तरह समझाए कि इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास गेट्स अ वेरी गुड ग्रास्प ऑन इट। हेलो एवरीबॉडी, my name is Satyam Jain. Welcome back to Understand UPSC. And by far, you would have known everything about the Success Foundation program. आप जान चुके होंगे the quality of teachers, the experience of teachers, the deliverables, the extraordinary pedagogical revolution that this program is coming up with. ठीक है, अब और क्या बचता है, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? बिकॉज अंडरस्टैंड यूपीएससी का बहुत ही सिंपल सा एक मोटो रहा है, excellence is not something that you just strive for. Excellence in this exam is the bare minimum criteria for us. उसके ऊपर उससे बेहतर और क्या कर सकते हैं? तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। The dream team just became, if it is a word, dreamest or dreamier, whatever you can say, for us and for you, both of us as well. आपको पता होगा कि मैं इंडियन सोसाइटी बहुत वक्त से पढ़ा रहा हूँ एंड एक इंडियन सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मेंस का है बोल बोल के बहुत पीछे पुश किया जाता है एंड देन GS1 में स्कोर ही नहीं आता है। मतलब GS3 के बाद अगर कोई पेपर सबसे कम स्कोरिंग हो गया तो वो GS1 है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपने पढ़ ली है, इंडियन सोसाइटी के आंसर्स क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं बच्चों से, और लिखे भी जा रहे हैं तो जेनरिक लिखे जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि उसमें कितनी टेक्निकलिटीज चाहिए, कितना एनालिसिस चाहिए, कितने ज्यादा इंटरलिंकेजेस चाहिए, एंड आवर फाउंडेशन प्रोग्राम इज नोन फॉर दैट। So to deliver the technical aspect of Indian society, to deliver the technicalities and analytical understanding and linkages of Indian society, I introduce to you another gem of the field of society, a hardcore sociologist, if I can say, a person who has delivered sociology optional like anything and anybody, a person whose credential speaks volumes. उनके खुद सोशियोलॉजी ऑप्शनल में अपने वक्त पे 300 प्लस मार्क्स आए हैं। वो इतने हजारों बच्चों को सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा चुके हैं, इंडियन सोसाइटी के ना जाने कितने बैचेस, कितने हजार बच्चे पढ़ा चुके हैं। एंड टू ऑल हिज क्रेडिट, ही इज द टॉप नॉच इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई with absolute pleasure and privilege introduce you, call on the stage Mr. Ravi Shekhar sir, who will be dealing with Indian society in the GS paper 1. Please sir, please, you are more than welcome on the stage and at Understand UPSC. It's a pleasure having you here sir. Thank you, Satyam sir. The pleasure is all mine. Hello everyone, my name is Madhukant and I have secured All India rank 578 in UPSC CSE 2024 and I got selected into Indian Police Service. In my this journey, Shekhar sir has helped me a lot and helped me in improving 80 marks from my CSE Mains 2023 to 2024, and this jump would not have been possible without him. I study society and social justice from Shekhar sir. As I was telling students sir, and the students will get to know कि कैसे सर ने अपनी एक्सपर्टीज ऑफ मेंस से, अपनी एक्सपर्टीज ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी से लिटरली लोगों के, आई हैव हर्ड द टेस्टिमोनियल्स एंड यू विल हियर द टेस्टिमोनियल, 80 नंबर मेंस में बढ़ाए हैं। सर, हाउ इज दिस मैजिक हैपनिंग, एंड इंडियन सोसाइटी में हम क्या ऐसा रिफॉर्म करने वाले हैं कि जिन बच्चों को बेसिक आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है सोसाइटी के, बिकॉज इट इज अ पुश्ड सब्जेक्ट, लेकिन 90-100 नंबर का पेपर आ रहा है, GS में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट सर? So, in order to answer your question, I would first try to explain what kind of questions UPSC is asking in Indian society. The kind of question that is being asked cannot be covered in some static books. Right. You require applied knowledge. Absolutely. But to apply that knowledge, you need to understand the some few core concepts and technical aspects of the discipline. For example, a question coming on caste static and caste fluid. It is directly relevant to Andre Bete's work in caste, on caste system. Right. है ना, या फिर चाइल्ड कर्लिंग वाला जो क्वेश्चन आया था, Absolute वो practical क्वेश्चन बस ऑब्जर्वेशन कि आप मॉल Correct. में जाते हो, देखते हो कि आजकल बच्चों को खाना खिला रहे हैं स्मार्टफोन, लेकिन वो समाज में चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी के लिए आपने सोशियोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। राइट। सो दिस पेपर इज नॉट करंट अफेयर्स का पेपर, ये इंडियन सोसाइटी का पेपर है। यू डोंट हैव टू राइट थिंकर्स या कोर थ्योरी, सोशियोलॉजी का पेपर नहीं है, है जनरल स्टडीज, बट दैट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग will
enable you to make all those required interlinkages Correct. जिसके बेसिस पे आप 20 to 30 मार्क्स हर क्वेश्चन में 2 to 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स गेन फेच कर सकते पाते हैं। राइट। एक मुझे ऐसा लगता है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये भी है जो हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि इंडियन सोसाइटी इज दैट वन सब्जेक्ट जिसको करने से आपके सोशल जस्टिस में हेल्प मिलती है, एथिक्स में हेल्प मिलती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एसए में हेल्प मिलती है। Sir, I'll be very honest. प्लीज। Everything is embedded in social, I mean, in society, political institutions, religion, education, economy, everything is after all social institution. Correct, correct. Right? Everything is, therefore these institutions are going to be interlinked. Correct. तो जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं ना तो हमें इन सारे सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज की होनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चंस देखें जी। तो आपको वो लेस ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड मोर ऑफ कभी एथिक्स का, कभी गवर्नेंस आया का था, बिल्कुल वैसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप अपने जीएस में अच्छे होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको उसको सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। तो वो एनालिसिस की एबिलिटी कि इन सब चीजों का सोसाइटी पे क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, उसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वंस यू लर्न दैट, we will also learn how to approach questions, we will also learn application of those questions, क्योंकि this is one subject जहाँ पे आप predict नहीं कर सकते हो। आप it is not current affairs question, if you remember 2020 में हम लोग ये conversation कर रहे थे यार, so you guys won't know this, ओमिक्रॉन का लॉकडाउन लगा था जी। एंड जस्ट कुछ दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि यूपीएससी के फील्ड में तो जनरली लोग नहीं पढ़ते वो न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि कस्टम्स एंड रीजंस जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं, कस्टम्स जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं रीजनिंग को, वो हाइड करते हैं, ऑब्सक्यूरेंटिज्म करते हैं। यूपीएससी ने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, फुल स्टॉप कमेंट पूछ दिया। सो वी नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप दुनिया भर की पढ़ो। करेक्ट, हम डोंट, वी डोंट बट ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि लॉकडाउन लगा है, फिर भी लोग शादियां ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे और उसके कारण कितने डेथ्स हुए थे। तो कोई भी कोविड में ये चीज ऑब्जर्व किया होगा तो वो कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को लिख सकता है। आप समझ रहे हो ना? सो इट इज मोर अबाउट दैट कि आप खुद एनालाइज कर पाओ उस स्टेटमेंट को, अपनी सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट करो। आपके पास इनफ एग्जांपल्स होने चाहिए कि आप उसको सब्सटैंशिएट कर सको एंड जस्टिफाई कर सको। एंड इफ यू डेवलप दैट एबिलिटी, इट आल्सो हेल्प्स यू इन अदर पेपर्स सच एज इंडियन इकोनॉमी, जहां पे आप सोशल एस्पेक्ट लिख पाओगे, सच एज जीएस2 जहां पे आपको सोशल जस्टिस में लिखने की हेल्प मिलता है, सच एज एथिक्स के केस स्टडी में या एसे के एग्जांपल में। एथिक्स में सर बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि सोसाइटी के एग्जांपल्स बहुत एथिक्स में यूज हो पाते हैं। यस सर, बिल्कुल। एंड देन गिविंग एसे अ डीपर एनालिटिकल टच, सोसाइटी अगेन हेल्प्स। जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके एसे के पेपर में एग्जैक्टली दैट इज व्हाट यू वर्कड ऑन एंड दैट्स हाउ यू डेवलप्ड योर एक्सपर्टीज ऑन सोसाइटी, राइट? तो जैसे सर आप लोगों को पता ही है कि बहुत अच्छा सोसाइटी पढ़ाते हैं, तो ही इंटेंशनली स्ट्रेटेजाइज्ड कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज एसे GS1 उसको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़े, एंड दैट्स व्हाई सर इज अ fabulous teacher of society himself, although he is now putting this responsibility on me, and I'm doing that, sir. I'm sorry I'm cutting you. I'm doing that only with one single agenda कि कैसे sir we deliver X plus Y to the students. Sir, I can just assure you this, that I'm standing at understand and I'll never leave one students जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। हमारी फोकस रहेगी कि हम सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको डेवलप करवाएं। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट सर। यस, सो दैट कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन हो आप उसको आंसर कर सकते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि डोंट ट्रीट द सोसाइटी पेपर लाइटली। आई डोंट नो कि आपके फाउंडेशन कोर्सेज में कैसे कराया गया है, कैसे कराया जाएगा, बस आप ये मेक श्योर करिएगा कि सोसाइटी जो 90 to 100 मार्क्स का मेंस में आता है, जो GS1 में डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, जो हर एक बाकी पेपर में कंट्रीब्यूट करता है, उसको आप उतने ही इंटरलिंकेजेस से, उतनी ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, उतनी ही डेप्थ से पढ़ें, और इसी के लिए वी हैव the expert in that particular domain, that particular field. Thank you so much once again, sir. Thank you so much. It is an absolute pleasure having you here, and we together will make sure that this foundation of Indian society and this foundation program of GS is the best Yes. of the best, sir. It's an honor to associate with the Thank you so success much. program, Thank you so much, sir. and we'll try our best that we'll try to deliver this foundation course to you guys in a very holistic, at the same time efficient manner as it should be done. Absolutely, sir. That is how it should be done. On that note, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you guys. Thank you so much, everybody. Thank you. Time for another major announcement of the day. Yes, ladies and gentlemen,
success, the best foundation program of India became better than the best. How come? कैसे कैसे मैं क्लेम कर रहा हूं खड़ा होकर यहाँ पे? क्योंकि at the same prices, without taking one single rupee, one single penny from you, we have added complete CSAT program in the foundation program. Yes, it is only because the love that you have shown for the team, the love that you have shown for the foundation program, and the immense amount of trust that you have shown for us. सिर्फ उस चीज के चलते the only aim is again and again कि कितना अफोर्डेबल करके कितनी ज्यादा क्वालिटी डिलीवर कर सके. तो कंप्लीट CSAT इंट्रोड्यूस्ड इन द फाउंडेशन प्रोग्राम. आपको CSAT के लिए अलग मॉड्यूल्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो जितने का हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है उतने के लोगों को CSAT के मॉड्यूल्स होते हैं. एंड नाउ दैट एंटायर CSAT मॉड्यूल इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन प्रोग्राम. ठीक है. एंड नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द फैकल्टी फॉर CSAT. He is somebody who has been such a strong pillar in CSAT that एक वो होती है ना, जैसे हम आपस में बात चलती है कि एक टीचर जो इस तरीके से डिलीवर करे कि स्टूडेंट्स ऐसा फीडबैक दें जो ओवरवेलमिंग हो. एक टीचर जो कॉन्सेप्ट्स को इस तरह समझाए कि इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास गेट्स अ वेरी गुड ग्रास्प ऑन इट. So not just any other teacher, a CSAT expert through and through. I introduce to you our own CSAT faculty, our own CSAT expert, Mr. Saransh sir on the stage. Welcome, Thank you sir. so much, sir. Thank you so much. दोबारा बुलाने के लिए मुझे अपने पास. No, sir, you'll always be an impeccable part of the team. And as I was telling students, sir, we are introducing the complete CSAT module in the foundation program, sir, at the same cost and the same prices. सर मतलब मुझे इतना पता है जी. कि यहाँ दिल्ली की मार्केट में उस चीज का जो प्राइस है जी सर. वो अकेले मैंने किसी का सुना था कि 25,000 जी जी सर, है. बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. तो पास हो नहीं रहे. पास होने रहे बच्चे पास उसके हो बाद नहीं में रहे. CSAT में. जी सर. तो सर इस बात की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ जी सर. कि कोई भी स्टूडेंट जो रेगुलर है, जी. रेगुलर जिसने क्लासेस करी है, मेरी बात मानी, उसको 90 से कम मार्क्स CSAT में नहीं होंगे. Wow. And you just need 67, 68 to crack it. ये मेरी गारंटी, पर्सनल गारंटी है. जी सर. लेकिन उसके लिए एक ही चीज है, रेगुलर रहना पड़ेगा, हाँ. होमवर्क करना पड़ेगा. होमवर्क करना पड़ेगा. और मैं खूब सारा होमवर्क देता हूँ. मैं बेसिक PDF पे अलग लगवाता हूँ क्लास में, एक जी. एक क्वेश्चन जी. कि हाँ जो मैंने कॉन्सेप्चुअल है. जी. 2025 में कुछ अलग ही हो गया था जी. कि उस बेसिक PDF से ही क्वेश्चंस डायरेक्ट Questions पुट हो direct गए आ थे. गए थे. जी सर. तो उस चीज का बेनिफिट तभी मिलेगा जब बिल्कुल सर. क्वेश्चंस लगाए करेंगे. जाएंगे. एंड वी आर विशिंग द सेम फॉर 2026. आपने क्योंकि 2026 पूरा CSAT हमारे हजारों पढ़ाया बच्चों को पढ़ाया है. वी आर विशिंग द सेम सर फॉर CSAT इन 2026. होगा सर, कुछ तो खेला होगा. जी सर. एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू 2027, जिसके लिए 2027 2028 जो फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे एनरोल करने वाले हैं. सर एक चीज चलिए मैं और अनाउंस कर रहा हूँ आज, जी. ठीक है, आपके थ्रू, जी. कि CSAT का आप 2029 का भी पेपर आप दे दो, आने वाले 5 साल तक एक भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मेरे नोट्स के बाहर नहीं होगा. और इस बात की पूरी गारंटी है कि आप भी पढ़ो, आपके छोटे भाई बहन भी IAS बने, जी सर, बिल्कुल. ठीक है, तो वो भी पास होंगे. और CSAT में कोई फेल नहीं कर सकता, कोई फेल नहीं करेगा, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ. थैंक यू सो मच. मैंने क्लास में लिख के दिया है. That is ये all that चीज़ we है. wanted to hear because CSAT एक बहुत ही ट्रबलिंग पेपर बना है बच्चों के लिए ओवर द इयर्स. एंड यार वही बात है ना कि हमें अंडरस्टैंड UPSC पे ये मेक श्योर करना है हमेशा कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो. हम आपका मेंस करा रहे हैं, हम आपका GS ऑफ प्रीलिम्स करा रहे हैं, हम आपको मेंस में बेस्ट बना रहे हैं, एसए में GS 1 2 3 4 एथिक्स एवरीथिंग, मेकिंग श्योर दैट यू आर द बेस्ट इन एवरीथिंग. तो हम एक पेपर क्यों छोड़ दें जिसके चक्कर में आपका बाकी जो इतनी मेहनत करी है वो रुक जाए. तो वो पेपर छोड़ना नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द बेस्ट इन द बेस्ट फॉर द बेस्ट टू मेक श्योर दैट everybody succeeds through success. Thank you so much, sir. Thank you so much for being a Thank part you of so it. much. Looking forward to having a lot of classes with you. बिल्कुल सर. और एक एक क्लास ऐसी जाएगी कि ये लोग खुद कहेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट हमने कभी सीखा ही नहीं था. Awesome, sir. Done है, sir. Done है. और सर कई बार हुआ है ये, जैसे मैंने इन लोगों को बताया कि आप कोई बुक परचेज मत करो. जी. ये बोलते सर क्यों बुक बता दी, मतलब खूब कंटिन्यूसली कमेंट आ रहे हैं. जी. मैं कहा सर देखो, बुक ना टीचर वही वाली बताएगा जो वो खुद लगा चुका है, ताकि जब आप डाउट पूछो
तो वो पता तुरंत सॉल्व कर दे, जी, फिर वो जी, आपकी जी। नजर में हीरो बन जाएगा। जी मैं कह रहा हूँ आपको जहां से डाउट पूछने हैं पूछो, जी लेकिन जो मैं पीडीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ जी वो 2-2 3-3 बुक के अकेले के बराबर है। जी जी तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती बात ही नहीं इधर-उधर बनेगी। घूमने सर की। इवन फॉर स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है और जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, वी आर मेकिंग श्योर दैट सर देखो यहाँ पे एक बात सिर्फ साफ सी है, सीसेट में कब कहा गया कि मैथ्स बैकग्राउंड चाहिए? अगर ऐसा होता तो वो जी। लिख के देता। सही बात है। ये मैथ्स बैकग्राउंड वाली बात इसलिए बोली जाती है ताकि बाद में जब आप फेल हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी Okay. टीचर की ना हो, आपकी ही मानी जाए। हम्म, तो मैथ्स का कोई पहले तो मैथ्स नहीं क्वांट है, सही बात देयर है। आर अ लॉट ऑफ क्वांट डिफरेंसेस। है, रीजनिंग है। हाँ, वो प्योर मैथमेटिक्स है और जो Correct. मैथ्स बोला था वो अप्लाइड मैथ्स की सर अलग पता चीज है। ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पूछ रहे हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पूछा, 10th तक का है, वो उसी हिसाब से पूछता है कि आप पास हो जाओ आराम इंटीग्रल से। डिफरेंशिएशन तो नहीं पूछ रहा है। हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। वही चीज है। सो विल मेक श्योर यार आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं नहीं हैं, सी सेट आपका नहीं रुकेगा, ताकि आप हमारे साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस लिखो, एंड इतना ज़्यादा सक्सेस में हम आपको मेंस के लिए ट्रेन करने वाले हैं that nothing is left unturned. That is a promise that we are going to deliver and fulfill. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much you, for being sir. a part of Thank it. Thank you so much. Thank you so much, dear students. See you very soon in the classes. Thank you.